A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed the second chapter of part A accountancy, that is a fundamental of partnership firm. That is a part of the accounting of partnership firm. In this chapter, we discuss a lots of important and basic concept related to the preparation of the accounts of partnership firm, like a profit and loss appropriation account, like a capital account of the partner. Either it is prepared by the fixed capital method or the fluctuating capital method. As well as we can see that in this chapter how we will calculate the interest on capital and interest on drawing in the different situation. So in this video, we will discuss second last topic of this chapter, that is adjustment closed account. So in this video, first of all, we discuss a numerical problem related to the adjustment closed account, and thereafter we will move to the next part of this chapter. Okay, so let us start the today's video, and this video is include the practical problem based on the adjustment closed account. So let us start. You can see that the first practical problem related to the adjustment in closed account. Let's we take the one more numerical problem related to the adjustment in closed account. So the question number 38. Firstly, please listen very carefully the question number 38. X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of X 1/2, Y 1/3 and Z 1/6. Okay, so X, Y, Z तीनों का profit sharing ratio है 1/2, 1/3 and 1/6. On 31st March 2018, their capital account after including the profit for the year 31st March 2018, and उनकी capital account means closing capital is given, that is a, and dealing with the drawing stood at rupees 13,000, 10,000 and 5,750, और उनका ड्राइंग भी दिखा रहा है 13,000, 10,000 and 5,750. Subsequently, they found out the interest on capital 5% per annum and interest on drawing at the same rate has been omitted. Finally, हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम रेट से यानी 5% के रेट से ही चार्ज करना omitted हो गया यानी भूल गया. The profit for the year is arriving at the above figures of the capital amounting to 9,000. यानी कि हमारी प्रॉफिट कितनी है साल की 9,000, और यू नो वेरी वेल ड्राइंग है एक्स वाई जेड की, दैट इज 1500, 500 एंड 750. द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का है 75, एक्स का 100, वाई का है 75 एंड जेड का है 50. गिव द नेसेसरी जनरेटरी फॉर रेक्टिफाइंग द अबव ओमिशन एंड the revised capital x, y and z. So it is a very important question, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में you can see that a lots of omission. Firstly, हमने closing capital find out कर ली. First of all, कुछ important information आप अपने solution के टाइम नोट डाउन कर लेना, ताकि जब भी आप सॉल्यूशन करने बैठो तो फिर आपको बार बार क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत ना पड़े. बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब. सो एक्स वाई जेड इन सबका PSR जो था वो है आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/2, 1/3 एंड 1/6. तो 1/2, 1/3 एंड 1/6 को जब आप इजी करोगे, सो दैट इज LCM 6, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 6 1s are 6. So the PSR among X, Y, Z is 3:2:1. Is that clear? And according to the question, the capital, that capital means the closing capital. Closing capital are given. और closing capital कैसी है, जिसमें हमने profit को including profit and drawing, इसमें हम लोगों ने profit को और drawing को include कर दिया है. So the closing capital of X, Y, Z, and according to the question, that is 13,000, 10,000 and 5,750. Next one is a subsequently they found that interest on capital 5% and interest on drawing 5%, we forget.
So according to the question, that is interest on capital at the rate of 5% per annum and interest on drawing at the rate of 5% per annum, हम क्या हो गए, omitted हो गया. Omitted मतलब भूल गए उसे रिकॉर्ड करना. ओके, सो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% चार्ज करना भूल गए. आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट था आपका 9000 और ड्राइंग है एक्स वाई जेड का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 फॉर एक्स, 500 फॉर वाई एंड 750 फॉर जेड. ओके, this is the amount of drawing and interest on drawing is a 100 for x, 75 for y and 50 for z. So पहले हम लोग क्या करेंगे, first of all we calculate the interest on capital and interest on drawing, and you know very well interest on capital is calculated on the opening balance of the capital, but in this question there is the information about the closing capital. इस question में कौन सी capital given है, that's the closing capital. So first of all we find out the opening capital, because interest on capital किस पे calculate होता है, opening capital पे. First of all we calculate the opening capital x, y and z. So what is the amount of closing capital? That is a 13,000 for x, 10,000 for the y and 5,750 for the z. इसमें क्या क्या इंक्लूड है, दैट इज अ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, एंड यू नो वेरी वेल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड एंड ड्राइंग विल बी एडेड. यू नो वेरी वेल. सो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड. So you can see that profit amount of rupees accounting according to the quotient, the profit will be a 9,000 and drawing is given. The drawing value is x, y, z is 1500, 500 and 750. So इनको ऐड करेंगे and profit will be 9,000 and it will be distributed among x, y, z in the ratio of 3:2:1. So 3 to 5 is 6, 6, 15, 4,500, 3,000 and 1,500. So it will be a deducted. Okay. So closing capital में profit minus होगा and drawing plus होगा and thereafter we find out the opening capital. हमें क्या मिल जाएगा, opening capital find out हो जाएगा. Okay. So what is the amount of opening capital? That is 4,500 plus 5,000, 3,000 minus करना है. That is the opening capital of X is 10,000. Opening capital of Y is 7,500. Opening capital of Z, that is a 5,000. So this is the opening capital. So you know very well हमने क्या भूल गए थे उसको देना, 5% interest on capital और 5% interest on drawing. So हम ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड कर देते हैं. Okay. Now this is a X, Y and Z. First of all you know very well, we doesn't need about it. You can see that कि हम लोगों का PSR जो है एक्स वाई जेड का कितना है, 3:2:1 है. एक्स वाई जेड का रेशियो जो है वो है 3:2:1. अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द करेक्ट स्टेप्स, हम करेक्ट स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे. दैट इज एक्स, वाई एंड जेड को. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके कैपिटल से क्या क्या प्रोवाइड करना था, उसको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो 10,000 का 5%, दैट इज 500. 7,500 का 5%, 375. 5,000 का 5%, दैट इज 250. तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमें क्या देना चाहिए था पार्टनर्स को. ओके, हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया. ओके, एंड दिस इज अ loss for the firm. You know very well this is a loss for the firm. So the total loss for the firm is 1,125 rupees. 1,125 rupees. And you know very well interest on drawing भी हमें चार्ज करना है 5% के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एक्स वाई जेड इज 100, 75 and 50. तो ये सारी चीजें पार्टनर्स में से क्या होती हैं, माइनस होती हैं. एंड दिस विल बी 225 रुपीज एंड दिस इज अ इनकम फॉर द फर्म. सो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. अब आप कहोगे सर हम सब कुछ दें, नो, आपने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट की थी बट वो क्लोजिंग कैपिटल क्या थी, गलत थी.
बिकॉज ऑफ उसमें हमने प्रॉफिट और ड्राइंग इंक्लूड कर दिया था, बट यू आर फॉरगेटिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ड्राइंग। तो ये जो मैं एनालिटिकल टेबल बना रहा हूँ, दिस इज द करेक्ट वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट किया, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की क्या नीति, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल के आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो आपने ओपनिंग कैपिटल के से यू हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स और वाई और जेड को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो एक्स को हमने दिया 500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई को दिया 375, जेड को दिया 250, तो 1125 rupees the total interest on capital provided to the partner. So this is a loss for the firm. And interest on drawing according to the question, interest on drawing x का कितना है 100, y का है 75 and 50, तो उसको हम पार्टनर्स में से माइनस करते हैं, बट इट इज अ इनकम फॉर द फर्म, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट कितनी आई, सो द प्रॉफिट विल बी अ, जो हमारे पास प्रॉफिट है, यू कैन सी दैट 1125, उसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 225, so this is a 900 rupees, and this 900 will be distributed among x, y and z। इसको x, y, z के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे in which ratio, 3:2:1। so 450 will provided to x, 300 provided to the y and 150 provided for the, so you can see that the net effect, बस इतना आपको करना था और आप इसमें ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन। So we find out 50 rupees minus for the x, you can see that 500 IOC का मिला, 100 रुपए IOD का कर दिया, so 400 इसको मिला, जबकि 450 रुपीज इसको क्या मिला है, प्रॉफिट। तो आप कंपैरिजन करेंगे कि इसकी प्रॉफिट कितनी है और इसके लॉसेस कितने हैं, आप कंपैरिजन कर लो। यहाँ पे 400, यहाँ पे कितना 300, यहाँ पे कितना है, that is 200, so you can compare this कि प्रॉफिट मिलना कितना चाहिए था 400, बट उसको प्रॉफिट मिला कितना है 450, तो 50 रुपीज हम लोग क्या करेंगे, उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लें। वहीं अगर आप यहाँ देखो जेड में, उसको 200 रुपीज मिलना चाहिए था, बट उसको हमने प्रॉफिट कितना दिया है 150 रुपीज, इसका मतलब से 50 रुपीज कम मिला है, तो उसको मोर 50 रुपीज प्रोवाइड करेंगे। इट मीन जेड की कैपिटल क्रेडिट होगी और एक्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। आप खुद देख लो, खुद से कंपेरिजन कर लो, 900 आई होगी प्रॉफिट, दिस इज 900 इज अ लॉस, और इस लॉस को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग द पार्टनर, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, दिस इज अ लॉस बिकॉज ऑफ interest on capital is higher than the interest on drawing. Interest on drawing is income for the firm, whereas the one hand interest on capital is a loss for the firm. So अगर आप देखो तो यहाँ प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 900, सो इस 900 को हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, यहाँ 900 लिख रहे हो, इस लॉस को आप क्या करो और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपके लिए, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 900 को एक्स वाई जेड के बीच में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वी फाइंड आउट द कंपैरिजन, 400 प्लस है जबकि 450 माइनस होना चाहिए था, 50 300 300 0, 200 150 minus is 50 plus 50, so I hope it is clear for you. So what is the adjustment entry of this question? The adjustment entry of this question is, so adjustment entry of this question is, according to the question, that is the X capital account debit to Z's capital, that is the amount is 50 and 50, this is your answer। and इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है, प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, सॉरी रिवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो इट इज होमवर्क फॉर यू। आपको इस क्वेश्चन का रिवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे बनता है रिवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यू नो वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फॉर्मेट अबाउट, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, और इसमें जो नई चीजें हैं, जो चीजें आप फॉरवर्ड कर रहे थे, उसको भी इसमें इंक्लूड करना है। So first of all, we write down the opening capital of XYZ. How many partners are there? 3 partners are there. So first of all, आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। The opening capital of XYZ 10,000, 7,500 and 5,000. Okay. और उसके बाद आप क्या करोगे, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे, दैट इज IOC। यहाँ क्या चार्ज करोगे, दैट इज
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग की वैल्यू चार्ज करोगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे एंड देयर आफ्टर यू विल ऑल्सो फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द पीएल एप्लीकेशन। तो उसके लिए अगर आप चाहो तो रफ में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट नहीं करना है तो सिंपल सा यही तरीका है कि आप इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, या तो आप एक स्टेप जैसे फॉलो कर लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। ओके, एक तरीका और है आपके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, वो सबसे सिंपल तरीका है कि आप सीधे यहाँ ओपनिंग कैपिटल ना लेकर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करो। क्लोजिंग कैपिटल इज 13, 10, 5,000, 10,000 एंड 5,750। आपने इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, आईओसी और आईएडी को इंक्लूड करने के लिए आपने ये जनरेटिव बात की, जैसे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, तो एक्स की कैपिटल को 50 रुपीज से डेबिट कर दो और जेड की कैपिटल को 50 रुपीज से क्रेडिट कर दो, और अपोजिट में लिख दो बाई एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, और उसके बाद एट लास्ट यू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, so please note down this question in your copy because it is a very important question for your examination purpose. Okay, I hope it is clear for you. Okay, so let's we move to the next question, which are also related to the adjustment in closed account. The question number is 41. Okay, so the question number 41 says that A, B, C are partners in the firm. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2016 is 30,000. Which has been duly distributed among the partners in their agreed ratio of 3:1:1 respectively. It is discovered that other mentioned transactions were not passed through the books of account of the firm for the year ended 31st March 2016. और ये फाइंड आउट हुआ ऑन द 10th अप्रैल 2016 कि कुछ ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुए। ओके, दैट इज नोन एज द एरर ऑफ ओमिशन। Which kind of the transaction are not recorded in the books of account? That is interest on capital at the rate of 6% per annum. Capital of A, B and C 50,000, 40,000, 30,000 respectively. Interest on drawing A 350, B 250 and C 150. Partner salaries A 5,000, B 7,500. Commission due to A for some special transaction is 3,000. You are required to suggest a single journal entry to be made on 10th April 2016, which will not affect the profit and loss account of that time. Rectify the position of partners capital account which are fixed. यानी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, सो हमें कोई भी रेक्टिफिकेशन करना है तो किस अकाउंट से करना पड़ेगा? दैट इज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट. So you know very well, according to this question, first of all we need note down the important information given in this question, that is a question number 41. ABC are partners. ABC are partners and their profit sharing ratio is 3:1:1. 3:1:1. That is 3/5, 1/5 and 1/5. And the capital of ABC will, according to the question, that is 50, 40 and 30. 50, 40 and 30. So जो हम लोगों ने भूला है, जो हम लोग भूल गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीजें प्रोवाइड कर देते हैं. ओके, सो thereafter we prepared the adjustment table. How many partners are there? 3, A, B and C, and the next column is the total. The first information जो हम भूल गए हैं, that is the interest on capital at the rate of 6%. So first of all we provide the interest on capital at the rate of 5%. So interest on capital किसका 5% चार्ज होगा? Sorry, 6% किसका चार्ज होगा? That is the capital. Capital is 40, 30 and 30. So A के लिए हो जाएगा 3,000, B के लिए हो जाएगा 2,400 and C के लिए हो जाएगा 1,800. So total interest on capital provided to A, B and C, that is the total loss for the firm is 7,200. You know very well, interest on capital partners के लिए प्रॉफिट है, बट फर्म के लिए क्या है? लॉस है. उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे. सो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए, बी एंड सी विल बी अ 350,
and this will be expense for the partners but income for the firm. 250 and 150. So total income for the firm is 750. And next one is a salary. You know very well, according to the question, सैलरी हमें देना था पार्टनर ए को 5000 और पार्टनर बी को देना था 7500. सी को हमें सैलरी नहीं प्रोवाइड करना, सो टोटल लॉस इज 12500 फॉर द फर्म. एंड कमीशन प्रोवाइड करना था टू सी फॉर स्पेशल सर्विस. हमें सी को कमीशन प्रोवाइड करना था, दैट इज अ 3000. सो सी के लिए ये इनकम हो गई, बट फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. सो एट लास्ट वी फाइंड दैट कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ. यू कैन सी दैट 12500 इज अ लॉस, 7200 is a loss, 3000 is a loss for the firm, whereas the income for the firm that is 750. So जो loss है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, that is a divisible loss. जब हम लोगों ने IOC, IOD, सैलरी एंड कमीशन प्रोवाइड किया, तो हमें कुछ लॉस हो गया, एंड दिस विल बी नोन एज अ डिविजिबल लॉस. सो डिविजिबल लॉस विल बी अ, कितना लॉस हो गया, दैट इज अ 21950 हमें लॉस हो गया. एंड दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी इन विच रेशियो 3:1:1. तो डिविजिबल लॉस को हम लोग क्या करेंगे, 3:1:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो ए को मिलेगा दैट इज 13,170 एंड बी को मिलेगा 4,390 एंड सी को मिलेगा 4,390. ये लॉस है. एंड देयर आफ्टर वी फाइंड आउट द नेट इफेक्ट. उसके बाद हम लोग नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट. सो यू कैन सी दैट पार्टनर ए की अगर हम बात करें तो उनका प्लस हो रहा है, दैट इज 8,308,000 एंड माइनस हो रहा है 13,170 प्लस 350. सो एट लास्ट वी फाइंड आउट कि उनके पास पॉजिटिव में बैलेंस है, दैट इज पॉजिटिव में उनके पास कितना बैलेंस है, 5000 एंड 3000. ओके, यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट भी गिवन है. क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान हटने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई. इज दैट कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रॉफिट इज 30,000. प्रॉफिट कितना है हमें, 30,000, और 30,000 में हम लोगों ने कितना प्रोवाइड कर दिया, दैट इज दिस. ओके, सो हमें प्रॉफिट भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ओके, एंड द प्रॉफिट विल बी 30,000. सो प्रॉफिट कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द प्रॉफिट इज 30,000, बट उसमें से हम लोगों ने कितना लॉस बियर कर लिया, उसको ऐड करके हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर. सो अवेलेबल प्रॉफिट इज 30,000 एंड द लॉस, नेट लॉस बाय द, जब हम IOC दिया, IOD चार्ज किया, सैलरी प्रोवाइड किया, कमीशन प्रोवाइड किया, सो एट लास्ट वी फाइंड आउट द लॉस इज 21,950. सो हमारे पास कितना अवेलेबल प्रॉफिट है आफ्टर द allowing all the things is 8,050 rupees, and it will be distributed among A, B and C in their 3:1:1. तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3:1:1 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 1610 for A, 1610 for B and 4,830 for A. So at last we find out the amount कितना A, B, C के पास अवेलेबल है. So we find out that is A को मिला 3,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कट गया 350, और सैलरी का मिला 5,000 और प्रॉफिट का मिला 4,830. तो ए को मिला होगा 12,480. ओके, सो प्लस में है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी बी, 2,400 मिला, 250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कट गया उसके अकाउंट से, 7,500 सैलरी का मिला एंड प्रॉफिट का मिला, दैट इज 1610, 16,010 रुपए, 1610 रुपए. सो 11,260 बी को मिला,
This is a correct distribution appropriation among the partner. And for C 1800 IOC का मिला, 150 रुपीज IOD का चार्ज हुआ, 3000 रुपीज कमीशन का एंड प्रॉफिट का 1610 रुपीज, सो इसको मिला 6260 रुपीज. ओके, दिस इज अ करेक्ट वैल्यू. ओके, एंड दिस इज अ करेक्ट वैल्यू. बट रॉन्ग क्या हुआ था? रॉन्ग ये हुआ था कि हमने 30,000 को बिना कुछ सोचे समझे, बिना IOC IOD सैलरी कमीशन को देखे बिना हमने उसको किस रेशियो मार दिया था? 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ था? रॉन्गली ये हुआ था कि 30,000 को हम लोगों ने को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी ए को बी को दिया था 6,000 दे दिया था, और सी को भी 6,000 दे दिया था. ओके, एंड जो सी है, ए है, उसको हम लोगों ने कितना दे दिया था? 18,000 प्रोवाइड कर दिया था. ओके, so at last we find out the correct value provided to the partner, and we find after the next net effect. Net effect will be a कि 12,480 मिलना चाहिए था, बट उसको मिल गया था 18,000. तो 18,000 में से 12,480 माइनस कर देंगे, सो उसके अकाउंट से कटेगा, दैट इज अ 5,520 रुपीज माइनस कर देंगे. यानी जब भी हम किसी कैपिटल अकाउंट को माइनस करते हैं, इट मींस उसको डेबिट करना. रही बात बी की, सो 11,260 में से माइनस करेंगे 6,000, तो 5,260 भी हम क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे, यानी कि हम बी को प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अ 5,260, और सी को प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अ 260. Okay, so we find out the solution of this question. At last we find out the adjustment entry of this question, that is A's capital account debit to B's capital to C's capital. A's capital is 5,520, for B 5,260 and 260. बेसिकली हुआ क्या था हमसे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझा जा सके. क्वेश्चन ये था कि ए बी सी के बीच का रेशियो था 3:1 और उनकी कैपिटल थी 50, 40 एंड 30. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज दैट कि हमने 30,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, दैट इज 18,000, 4, 6,000 एंड 6,000. ओके, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. इज दैट क्लियर? बट हमें करना क्या था? हमें IOC प्रोवाइड करना था 6%, IOD चार्ज करना था, सैलरी चार्ज करना था, कमीशन प्रोवाइड करना था. So after that we find out कि IOC देना था A को 3,000, B को 2,400, C को 1,800. तो टोटल IOC कितना प्रोवाइड किया गया? 7,200. IOD कितना चार्ज करना था? 350 फ्रॉम A, 250 फ्रॉम B एंड 150 फ्रॉम C. तो टोटल IOD कितना चार्ज हुआ? 750. सैलरी कितना देना था? A को 5,000, B को 7,500. टोटल सैलरी 12,500 में प्रोवाइड करना था, और कमीशन देना था C को, दैट इज 3,000. तो हमने 3,000 सैलरी कमीशन दिया. तो वी फाइंड आउट कि टोटलिटी में यहां पर हमें IOC से लॉस हुआ, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं. सैलरी से 12,500 का लॉस हुआ, 3,000 किससे लॉस हुआ? दैट इज कमीशन से, और 750 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. सो एट लास्ट हमने कितना एक्सपेंस कर दिया? IOD माइनस करके IOC सैलरी कमीशन को ऐड करके वी फाइंड आउट दी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज 21,950. हमारे पास प्रॉफिट कितनी थी? 30,000. उसमें से कितना एप्रोप्रिएट कर दिया? 21,950. कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है? 8,050. इसको हम क्या करेंगे? करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग A, B एंड C इन देयर रेशियो, दैट इज 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो दिस इज अ करेक्ट क्या होना चाहिए था? A को मिलना चाहिए था 12,440, B को 11,260 एंड C को 6,260. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने 30,000 को करेक्टली बिना कुछ एप्रोप्रिएशन किए, बिना IOC IOD सैलरी एंड कमीशन को प्रोवाइड किए बिना ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज 18,000, 6,000, 6,000. सो एट लास्ट वी फाइंड आउट द नेट इफेक्ट. नेट इफेक्ट में हमने क्या पाया? दैट इज कि A को मिलना चाहिए था 12,480, बट मिला कितना? 18,000. तो कितना ज्यादा मिला? 5,520. वो उसके कैपिटल अकाउंट से कट कर दिया जाएगा. बी को मिलना चाहिए था 11,260, बट उसको मिला कितना? ओनली 6,000. तो उसकी कैपिटल में से 5,260 को ऐड कर दिया जाएगा. सेम एज इट इज
सी के पॉइंट ऑफ व्यू में मिलना चाहिए था 6,260, बट उसको मिला है ओनली 6,000, तो 260 रुपीज उसे हम और प्रोवाइड करेंगे. So basically the rectification entry of this question is A's current account. Sorry for that, because capital are fixed in this question. So the rectification entry is A's current account debit, because A के current account से हमें कट करना है, और B और C के current account में हमें क्या करना है, ऐड करना है. So to B's current to C's current. So the values: A's current 5,520, B's current 5,260, and C's current is 260. Okay, so please note down this question, this solution in your copy. Okay, so I hope today we completed the very important, the second last topic of this chapter, that is adjustment in closed account. So in the next video we will introduce the last topic of chapter 2 of class 12th accountancy, that is a guarantee of profit to the partners by the firm, or in other words we can say that guarantee of profit by the partner to the another partner. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and I request all the students, please solve all the additional question given in your book, and if you have any kind of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot.